Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed chapter number 4. Now today we will start from chapter number 5, that is My Loving Grandfather. आप सब भी अपने grandfather से बहुत प्यार करते हैं, grandfather and grandmother. In this chapter, we will understand my loving grandfather. I remember my grandfather. He was very old and feeble. I remember my grandfather, he was very old and feeble. He used to stick to walk. He used to stick to walk. I remember my grandfather, he was very old and feeble. Students, what is the meaning of feeble? It means very weak. He used to stick to walk. वो जब चलते थे तो उनको एक स्टिक की जरूरत पड़ती थी. Sometimes his hand shook, मतलब उनके हैंड्स जो थे वो क्या होते थे, वाइब्रेट होते थे. He would often nod by the fireside and doze off. Students, what is the meaning of doze off? To sleep slightly. To sleep slightly. I repeat it again. I remember my grandfather. He was very old. वो काफी old थे and feeble. What is the meaning of feeble? It means very weak. He used to stick to walk. Sometimes his hand shook. He would often nod by the fireside and doze off. It means to sleep slightly. Now move to the next paragraph. We lived in a small town in Kashmir. ये लोग कहाँ रहते थे? We lived in a small town in Kashmir. When granddada was young, he was very good carpenter. जो granddada थे वो काफी young थे और he was very a good carpenter. People would come from Delhi. और पहले क्या होता था? People लोग दिल्ली से आते थे उन लोगों को ऑर्डर प्लेस करने के लिए. We lived in a small town in a Kashmir. When granddad was young, he was very good carpenter. जब वो young थे वो काफी good carpenter थे. People would come from Delhi to place their orders. और लोग दिल्ली से आते थे उनको orders देने के लिए. He used good wood and people like his work. उसके जो granddad थे वो काफी अच्छा मटेरियल यूज करते थे वुड का और उनका वर्क सबको पसंद आता था. My father learned to be a good carpenter for him and earned well. और जो मेरे फादर है उन्होंने ये वर्क मेरे ग्रैंड डैड से सीखा है और आज वो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं. Soon I too sat in the workshop. जल्द ही मैं भी उस वर्कशॉप में बैठूंगा. I could use a hammer, a saw and a plane to shape the wood. I could use a hammer. वो जो बॉय है वो बोल रहा है कि मैं यूज करता हूँ हैमर को शेप देने के लिए. किसको? वुड को. Hammer, a saw and a plane to shape the wood. I repeat it again. We lived in a small town in Kashmir. वो लोग कहाँ रहते थे? Small town in Kashmir. When granddad was young, जब उसके जो granddad young थे वो एक काफी good carpenter थे और उनको लोग ऑर्डर देने के लिए कहाँ से आते थे? दिल्ली से. People would come from Delhi to place their orders. He used good wood. और जो उसके ग्रैंडडैड थे वो कैसी वुड यूज करते थे? काफी अच्छी क्वालिटी की वुड यूज करते थे और काफी अच्छा मटेरियल यूज करते थे. एंड पीपल लाइक्ड हिज वर्क. और लोगों को उनका काम काफी पसंद आता था. माई फादर लर्न टू बी अ गुड कारपेंटर. और जो मेरे फादर है उन्होंने ये जो भी वर्क है किससे सीखा है? ग्रैंड डैड से सीखा है. माई फादर लर्न टू बी अ गुड कारपेंटर फॉर हिम एंड अर्न वेल. वो काफी अच्छा अर्न करते हैं. Soon I too sat in the workshop. I could use a hammer, a saw and a plane to shape the wood. और मैं जो भी wood है उनको hammer को use करके उनको shape देता हूँ. Now move to the next paragraph. You can see this is the hammer. Now next paragraph. Every evening
एवरी इवनिंग वी यूज टू सिट डाउन फॉर डिनर एट द टेबल। वो बॉय बोल रहा है कि हम हर इवनिंग, हर शाम को एक साथ एक ही टेबल पे बैठ के डिनर किया करते हैं, वोल फैमिली। बोथ माई मदर एंड फादर यूज टू एंग्री विद द ओल्ड मैन। जो उसके मदर और फादर है, वो जो ओल्ड मैन, जो उसके ग्रैंड डैड है, उससे काफी एंग्री हो जाते हैं। while eating he old man while eating the old man he sometimes spilled soup on his cloth। और कभी कभार क्या होता है, एक्चुअली वो काफी ओल्ड है तो उनके हाथ शूक करते थे, उनके जो हैंड्स है वो शूक करते थे, तो क्या होता था, जो सूप है वो उनके क्लोथ्स पे गिर जाता था। वेरी ऑफन ही ड्रॉप द स्पून। और कभी कभार क्या होता था कि जो वो स्पून है उनके हाथों से गिर जाता था। वन डे ही ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। एक बार क्या हुआ, उनके हाथ से गलती से जो वो प्लेट था वो नीचे गिर गया। कहाँ पर, फ्लोर पर। ही इट ब्रोक इनटू टाइनी पीसेस। और जो वो प्लेट था वो काफी ब्रोक हो गया इनटू टाइनी पीसेस। माई पेरेंट्स वर वेरी एंग्री। इससे क्या हुआ, जो बॉय था उसके पेरेंट्स थे वो काफी एंग्री हो गए। फ्रॉम दैट डे ऑन माई ग्रैंड फादर हैड टू सिट एट द साइड टेबल। और उसके बाद उनके पेरेंट्स क्या करते थे उस ग्रैंड डैड के साथ, जो ग्रैंड फादर थे उनके साथ वो लोग ये करते थे, जब भी डिनर करते थे वो उनको एक साइड टेबल पे बैठकर डिनर करवाया करते थे। He ate his meal in a wooden ball। जब से उन्होंने वो प्लेट को ब्रोक किया, मतलब वो जो प्लेट टूट गया था, उसी के बाद से उनको पहली बात तो साइड टेबल पे डिनर करने को बोल दिया था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस लिटिल बॉय के जो पेरेंट्स थे, फादर थे, उनको कारपेंटर का वर्क आता था, तो उन्होंने क्या किया, एक वुडन बाउल बना दिया। कैसा बाउल बना दिया स्टूडेंट्स, वुडन बॉल। तो जो ग्रैंडफादर थे उनको साइड टेबल पे बैठाकर और उसी में डिनर दिया जाता था, वुडन बॉल में। आई न्यू डैड ग्रैंडडैड वॉज सैड। और इसके बाद से जो ग्रैंडडैड थे ना वो काफी सैड हो गए थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सब एक ही टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे हैं और ग्रैंडडैड को एक साइड टेबल पे बैठकर डिनर करने को बोल दिया। He ate his meal in a wooden ball. I knew that granddad was sad, but he did not say anything. पर वो लिटिल बॉय बोलता है पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। I repeat it again. One day he dropped his plate on the floor. It broke into tiny pieces. एक बार क्या हुआ, उनके हैंड्स शूक ऑलरेडी होते थे, तो उनके हैंड से एक बार जो प्लेट थी वो नीचे गिर गई फ्लोर पे। It broke into tiny pieces. My parents were very angry. जो ये लिटिल बॉय है उसके पेरेंट्स काफी एंग्री हो गए थे। From that day on, my grandfather had to sit at a side table. You can see in this picture जो ये ग्रैंडफादर एक साइड टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे हैं और बाकी इस लिटिल बॉय के पेरेंट्स और लिटिल बॉय एक ही टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे हैं। He ate his meal in a wooden ball. आप ये देख रहे हो, ये जो बाउल है ये कौन सा है, वुडन बाउल है। वुडन बाउल में डिनर कर रहे हैं ग्रैंडफादर। I knew that granddad was sad, but he did not say anything. पर वो कुछ भी नहीं बोल सकता। Now move to the next. One morning I went into the workshop. एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में ये जो लिटिल बॉय है ये अपनी वर्कशॉप पे गया था। I was busy all day working on the pieces of wood. लिटिल बॉय बोल रहा है कि I was busy all day, मैं पूरा दिन बिजी था working on the pieces of wood. I did not notice my parents standing beside me. तो उस लिटिल वो इतना बिजी था कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स साइड में उसके पास खड़े हैं। I did not notice my parents standing beside me. What are you making? उसके फादर पूछते हैं What are you making? तुम क्या बना रहे हो? Asked my father. I am making a wooden bowl for you. तो बॉय क्या रिप्लाई करता है अपने फादर को, I am making wooden ball
फॉर यू, मैं एक वुडन बाउल बना रहा हूं आपके लिए। व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप लोग ओल्ड हो जाओगे, यू कैन ईट इन इट। वो क्या बोला लिटिल बॉय, जब आप लोग ओल्ड हो जाओगे तब आप इसी वुडन बाउल में खाना खाएंगे। व्हेन रिप्लाइड, देयर वर टीयर्स इन माई फादर्स आईज, और ये सुनने के बाद जो लिटिल बॉय है उसके फादर के आंखों में क्या थे स्टूडेंट्स, टीयर्स थे, आंसू थे। माई मदर टू विप्ड अ टीयर अवे, और उसके बाद जो उसकी मदर थी उन्होंने वाइप किया टीयर को। आफ्टर डेट माई ग्रैंडफादर ऑलवेज सेट एट द हेड ऑफ द टेबल, और ये सुनने के बाद उसके फादर जो ग्रैंडफादर थे वो टेबल के सब में मिड में बैठते थे। आफ्टर डेट माई ग्रैंडफादर ऑलवेज सेट एट द हेड ऑफ द टेबल, ही वॉज ट्रीटेड विथ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। उसके बाद इस सिनेरियो के बाद उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको काफी अच्छा ट्रीट किया, काफी प्यार दिया, काफी रिस्पेक्ट दी। I hope you understand this chapter. I repeat it again. One morning, I went into the workshop. I was busy all day working on the pieces of the wood. I did not notice my parents standing beside me. उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि उसके पेरेंट्स उसके पास में ही खड़े थे, वो इतना बिजी था। तो उसके फादर ने पूछा, What are you doing? Asked my father. I am making a wooden ball for you. When you are old, you can eat in it, replied. There were tears in my father's eyes. My mother too wiped a tear away. After that, my grandfather always sat at the head of the table. He was treated with great love and respect. I hope you understand this chapter. Now move to the next. That is new words. Students, you have to do this new words in your English first notebook. First one, that is fable. क्या है fable का meaning? That is very weak. Next, does of. It means to sleep slightly. Workshop, a place where manufacturing or handicrafts are carried on. ऐसी place जहाँ पे handicrafts के item manufactured होते हैं. Next, hammer, a hand tool consisting a solid head. Saw, a tool used to cut wood. इससे क्या होता था, जो wood था वो cut होता था. Next, angry, showing anger. Next, spilled, to cause or allow unintentionally to fall. स्पिल्ड का मतलब जानबूझकर उन्होंने नहीं गिरा है, गलती से जो चीज गिर गई उसे कहते हैं स्पिल्ड. ऑफन मतलब मैनी टाइम्स, बहुत बार हुआ है. नोटिस, वार्निंग ऑफ समथिंग. रिस्पेक्ट, हाई और ग्रेट रिगार्ड. तो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. हमें हमेशा हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Okay students, I hope you understand this chapter. That's all for today. Thank you class.